Okay, see, the subject name is our material science engineering. Many says material science, many says material engineering. तो there are many names of this subject. इस सब्जेक्ट का बहुत सारा नाम है, ठीक है. मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग भी बुलाते हैं, मटेरियल साइंस भी बुलाते हैं, मटेरियल्स इंजीनियरिंग भी बुलाते हैं. Basically all are same. We are having different names as per different syllabus of different universities across India, but this is the very core subject and it is taught in each and every university of all over India. Not only in India, it is taught globally in the world also. So you should have the basic knowledge of the material, how you are manufacturing steel as you are the student of मैकेनिकल इंजीनियरिंग. तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग बेसिकली हम लोग स्टील पे काम करते हैं. तो स्टील कैसे बेसिकली बन रहा है, उसके पीछे फिनोमेना क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है, वो हमें जानना जरूरी है एज ए मैकेनिकल इंजीनियर, राइट. So this is very important subject as far as our stream is concerned. So let us start our PPT. Move to next slide. As in the previous class, मैंने दिया था सभी को रेफरेंस बुक बताया था मैंने. If anyone is new or has joined just this class as a first class, he can note it down. I have given 2 books as a reference. One book I have said, I have stressed on this book. मैंने सब, अगर किसी को याद होगा, नीलंजन को याद होगा, नीलंजन का मैं बोले चिला मने आछे जे V Raghavan Sawai Neve. All of you must buy V Raghavan book, which is easily available in the bookstores in any town of the country. It is a very renowned and very famous book. So you should have this to have a detailed knowledge of the subject. And the another book which I have referred is Material Science and Engineering, which was written by William D. Callister, and the publisher name is John Williamsons. It is given as 210, but you will go for the latest edition books. Okay. जैसे वी राघवन का भी 2004 लिया हुआ है यहाँ पे पीपीटी मैंने लिख रखा है, तो वो हमारा पुराना स्टडी मटेरियल से मैंने कलेक्ट किया है, तो वहाँ पे 2004 था, तो वही एज इट इज़ आ गया है. बट तुम जो भी है, आप लोग जो भी बुक खरीदेंगे, whichever book you will buy, try to buy the latest edition book. Okay, so this was the reference to main books of the subject. Now moving on to this subject. See, before starting the subject, we should know what are the basic questions we should have in our mind before starting the subject. Has anyone joined? Just wait for a while. कोई join किया मुझे लगता है. Okay. Okay, the slide is visible to all. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay, very nice. Okay, mute yourself. Now see, basically the subject has come from the very basic subject which is I have discussed in the previous class also, that is chemistry. So material science is basically a combination of physics and chemistry, where we will study chemistry as a major part and some part we will study as a physics also. कुछ laws, कुछ phenomena को use किया गया है. So it is a combination of basic science and how we will modify that into a new subject that we will see, which is known as material science. केमिस्ट्री फिजिक्स को मिलाकर हम लोग उसको मॉडिफाई किए और एक नया सब्जेक्ट बनाया है. कैसे मॉडिफाई हो रहा है, क्या नया नया चीज़ हम पढ़ रहे हैं, उसे हमें देखना है, जिसका सब्जेक्ट का नाम दिया गया है कॉम्बिनेशन ऑफ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स एज मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग मटेरियल और मटेरियल्स इंजीनियरिंग, राइट. So these are the basic question we should have in our mind, that why is a glass called brittle material, why copper is a ductile material, what is meant by a ductile material. Have you heard these words before? Anyone has heard these words before? The glass which we are using is a brittle material. The copper which we are using is a ductile material. Now when we are discussing about these two type of terms, brittle and ductile, then what is meant by ductile material? What is meant by brittle material? What are their properties? So that we will go through on this subject. Okay. Now if we, next question we should have in our mind, that if we take two rods, one of AI and another of steel, why it is easier to bend the AI rods as compared to steel rods? What is AI rods? Any idea? Anyone can guess? किसी को समझ में आ रहा है AI rod क्या है? Okay, never mind. We will go through in our details in our next slides. डिटेल में जब हम लोग जाएंगे तब मैं बताऊंगा, इसको याद रखना.
Next question in our mind, it should come as how can I change properties like hardness without changing the composition. Say 0.8% कार्बन स्टील, ठीक है, हम लोग हार्डनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं, हम लोग हार्डनेस को कैसे चेंज कर सकते हैं, ये हमें देखना है. दिस वी शुड लुक इनटू. ओके, दिस इज द मेन कंसर्न ऑफ आवर सब्जेक्ट. हम लोग कैसे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल चेंज कर सकते हैं, हम लोग प्रॉपर्टीज कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं. डिक्रीज तो नहीं किया जाता, प्रॉपर्टी में से इनहेंस किया जाता है, बढ़ाया जाता है. उसको मतलब हम लोग कैसे इंक्रीज कर सकते हैं प्रॉपर्टीज का. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इन आवर माइंड, इट शुड बी व्हाई इज वायर ऑफ कॉपर कंडक्टिंग व्हाइल पीस ऑफ ब्रिक और वुड नॉट कंडक्टिंग. ये तो मुझे लगता है सभी को पता होना चाहिए इसका आंसर. सभी कोई केमिस्ट्री फिजिक्स में इस कॉन्सेप्ट को पढ़े हो. I think everyone must have gone through this concept that why copper is conducting and why brick and wood is not conducting. जानते हो ना इसका आंसर? Students, give some reply. Am I audible to all? Yes, sir. तो मैं जो बोल रहा हूँ थोड़ा रिप्लाई दो, बीच बीच में रिप्लाई दो, तो मैं समझूंगा. प्रेजेंस नहीं समझ पा रहा हूँ ना. How I can identify that you are present in the class if you not respond? Okay, just respond yes, no, like this only. When I will ask to respond. Okay. Okay. Next, I think this question is very much familiar to you all from initial days. सभी को उम्मीद करता हूँ केमिस्ट्री फिजिक्स में पढ़े हो. रिव्यू में इसके बारे में डिस्कशन, वी विल डिस्कस दिस इन आवर नेक्स्ट स्लाइड्स. जैसे जैसे स्लाइड जाएगा हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज और क्वेश्चन शुड बी इन योर माइंड दैट व्हाई इज ए ग्लास ट्रांसपेरेंट, व्हाई एनी मेटल इज ओपेक, व्हाई इज इट सो, व्हाट इज इट्स प्रॉपर्टी व्हिच मेक्स देम टू बिहेव लाइक दिस. क्या प्रॉपर्टी हो सकता है, तो ये हम लोग पढ़ेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इन योर माइंड शुड बी what does the electrical conductivity so what does opaque opaque क्या होता है, कोई और जानता है? मैं बताता हूँ, किसी और के बारे में पूछ लूँ पहले. कोई जानता है? एनीवन? नो सर. नो, किसी को आइडिया नहीं है. ओपेक का मतलब होता है एक ऐसा मटेरियल जिसके थ्रू तुम लोग देख ना सको. किसी भी मेटल ट्रांसपेरेंट होता है क्या? कोई भी मेटल जो ट्रांसपेरेंट नहीं होता उसको ओपेक मटेरियल बोला जाता है. अच्छा, ओके. ट्रांसपेरेंट का अपोजिट, ग्लास इज ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल. हम लोग आर पार देख सकते हैं ना, वी कैन सी थ्रू आउट, देख सकते हैं. तो ग्लास का आसपास ग्लास में जितना ग्लासेस होता है, जो पीने का ये होता है, ग्लास होता है, बर्तन होता है, यूटेंसिल्स होता है, जो भी चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं, इट इज ट्रांसपेरेंट मटेरियल बेसिकली ग्लास. विंड सीट लगा रहता है कार वगैरह में भी ग्लास मटेरियल है, ट्रांसपेरेंट होता है. Yes. लेकिन कोई भी मेटल आज तक देखे हो ट्रांसपेरेंट मेटल, ट्रांसपेरेंट स्टील, ट्रांसपेरेंट एल्यूमिनियम देखे हो? No, sir. नहीं ना. उसीलिए उस तरह के मटेरियल को ओपेक बोलते हैं जो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है. ठीक है. ओके, गॉट माय कॉन्सेप्ट. तो ये बेसिक थिंग्स है, जो टेक्निकल टर्म्स है, ये सबको याद रखना है. ठीक है ना. व्हाट इज ओपेक मटेरियल बोला चाहे वापिक, तो उसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना. ओपेक मतलब क्या होता है. ठीक है. ओके, वेरी नाइस. नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, it should be in your mind that why does the electrical conductivity of copper decreases on heating while that of silicon increases. सिलिकॉन को हम हीट करेंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ेगा, कॉपर को हीट करेंगे तो वो डिक्रीज करता है. क्यों? एनी आइडिया? किसने पढ़े हो इस बारे में? किसी को नॉलेज नहीं है? एनी गेसेस? What is responsible for doing this type of property? So valency, sir. Valency. Valence electrons, you can say a little bit, but there is another option. एक और ऑप्शन भी है, बोलो, कोई सोच सकते हो तो. The bonding between the atoms. Bonding is responsible. ठीक है. We will go through in our next slides. इस बारे में हम लोग पढ़ाएंगे. ठीक है. देखोगे उसमें बॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबल कैसे होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज और डिक्रीज कराने के लिए. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाई डज आयरन कोरोड इजीली while aluminum does not. ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है.
कोरोड का मतलब क्या होता है? एनी गेस? किसी को आइडिया? व्हाट डज द वर्ड कोरोड मीन? जॉन्ग लेके जाओ। या ऑब्वियसली रस्टिंग। ওকে, তো অ্যালুমিনিয়াম রাস্ট ধরে না, কিন্তু আয়রন রাস্ট ধরে না, এটা আমরা তো সবাই চোখে দেখেছি, বাড়িতেও দেখেছি, ছোট থেকে দেখতে এসেছি, তাই না? তো এটা কেন হয়? হোয়াট ইজ দ্য রিজন বিহাইন্ড দ্যাট? সো দ্যাট উই উইল গো থ্রু इन आवर नेक्स्ट स्लाइड। एनी गेस क्यों होता है? ऑक्सीडाइजेशन होने। या ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होता है, वो क्यों काम करता है? ड्यू टू द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द मटेरियल। मटेरियल का जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीडाइजेशन करने का, और ऑक्सीडाइजेशन अगर किसी केमिकल कंपोजिशन के साथ अगर हो जा रहा है मतलब वो रस्ट पकड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक फिनोमेना। तो नेक्स्ट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कम I can hold a molten material in a liquid state below the melting point. For example, water can be held at sub -0 degree centigrade temperature for at least some time. ठीक है, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट में, जैसे जैसे डिटेल में हम जाएंगे। सब क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस सबको आंसर देना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, इंटरव्यू में पूछा जाता है सब क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इन अवर माइंड, व्हाट इज इट शुड बी यूजुअली गुड थर्मल कंडक्टर्स आर आल्सो गुड electrical conductors also. Why is it so? Why is a diamond a good thermal conductor but not an electrical conductor? Okay, why is it so? इस बारे में हम लोग पढ़ेंगे। The last question is, if I pull a spring and then release the load, it comes back to its original shape. However, if I bend a aluminium rod, it does not come back to its original shape. How one can understand these observation? इसके बारे में कोई गेस, कोई आइडिया है? All of you have seen this practical. इसका प्रैक्टिकल सभी कोई देखे होंगे। एक स्प्रिंग को अगर हम if we imply external load or external force on a spring, it can extend or it can be compressed from its original shape and size. But when we release that external load or external force, it regains its original shape and size. But whereas if a aluminium rod or any metal rod is being applied a external force from outside, it does not regain its size when the load is being removed. क्यों ऐसा होता है? Due to which property? So elasticity because of. Yeah, obviously. The name is elasticity. Very good. ठीक है, these are the basic questions. अच्छा just wait, कोई स्टूडेंट ज्वाइन किया, मैं उसे ज्वाइन करवा लेता हूँ। इतना लेट एंट्री करने से तो मुश्किल है, इतना लेट से कौन आता है? जय चैटर्जी, क्लास में इतना लेट एंट्री करोगे तो मैं नेक्स्ट टाइम से नहीं अलाउ करूँगा। ठीक है, इट इज ऑलमोस्ट 11:25 में आ रहे हो तो मीनिंगलेस होता है ना क्लास का, इतना तो टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से मैं उम्मीद करता हूँ 10 मिनट में सबको ज्वाइन कर लोगे। मैं 10 मिनट का लिबर्टी दूंगा, 10 मिनट के बाद मैं ब्लॉक कर दूंगा, मैं नहीं एंट्री करने दूंगा। ठीक है, नीलांजन। Yes sir. Kindly circulate this message to all the students that there is a limitation of maximum of 10 minutes. After that, Okay. sir will not allow you to join in the class. That class will be go as a absent for you. ठीक है, सभी को এটা মেসেজটা দিয়ে দেবে যে ম্যাক্সিমাম স্যার 10 মিনিট তোমার ওয়েট করবে, তার বেশি নয়। ঠিক আছে, ওকে, let us proceed. It is visible to all? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Yes, sir. Our next, moving on to next slide. This is the very basic questions that we will learn in this chapter, that what does material science lie in the board of scheme of things? What are the common types of material? We will learn. What are the scientific and engineering part of material science and engineering? This we will learn. What is the important goal of material science? This we will learn. We will see what determines the property of the material. This is also we will see in our next slides. Now next, moving on to the next slide. So these are the very broad classifications. So
यू शुड नॉट गेट नर्वस। तो इसे हम लोग नेट डिस्कस करते हैं। लेट अस स्टार्ट डायरेक्टली फ्रॉम आवर टॉपिक्स। ओके, ठीक, ये हमें दिख रहा है। दिस स्लाइड इज विजिबल टू ऑल? Yes, sir. Okay. So this is a very broad classification of our material. How the material is being placed in our universe to the basic small particles. The very smallest particle is known as nanocrystals, nanoparticles. जानते हो सभी कोई? सबसे छोटा पार्टिकल को नैनो पार्टिकल कहते हैं। Yes. हाँ सर। ओके, नैनो मतलब होता है सबसे छोटा। तो यहाँ सबसे नीचे में लिखा हुआ है नैनो क्वाजी क्रिस्टल, लिखा हुआ है ना, तो मतलब सबसे छोटा पार्टिकल। तो कहाँ से टूटते टूटते तक छोटा होता है, तो उसका जस्ट वी आर एक्सप्लेनिंग द सीक्वेंस। इफ यू मूव ऑन टू यूनिवर्स, यूनिवर्स मतलब समझ ही रहे हो सभी, कोई छोटे से हम लोग साइंस में पढ़ते हुए आए हैं। यूनिवर्स क्या होता है? यूनिवर्स में हम लोग का डिफरेंट गैलेक्सीज प्रेजेंट है। गैलेक्सीज के अंदर हमारा सोलर सिस्टम है। यूनिवर्स के अंदर हमारा क्या है? हम लोग कौन से गैलेक्सी में पढ़ते हैं? वी लाई इन विच गैलेक्सी? मिल्की वे। मिल्की बार नहीं है, मिल्की वे। Milky Way. यस सर, मिल्की वे। ऐसा भूल जाओगे कैसे चलेगा? बेसिक बेसिक छोटा छोटा चीज है। तो मिल्की वे गैलेक्सी में हम लोग लाई करते हैं। और मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर हम लोग कौन सा सिस्टम में लाई करते हैं? Solar system, sir. सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में हम लोगों का फिलहाल हम लोग वी आर फैमिलियर विद 9 planets and 1 sun which is placed in the center of that all the 9 planets. Every planet is placed in different position at different distance from the sun. We all are familiar with that. हम लोग छोटे से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो देखो हम लोगों के जो यूनिवर्स से जब हम लोग प्लेनेट तक आते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या क्या क्रॉस करते हुए आते हैं? स्पेस क्रॉस करते हुए आते हैं। स्पेस क्रॉस करता है डिफरेंट एनर्जी लेवल क्रॉस करते हुए आते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो हमारा एनर्जी लेवल है वो हमारा वेरी करता है। दैट वेरीज फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टू वीक। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होता है वहाँ पर, ग्रेविटेशनल फोर्सेस भी एक्ट करता है। हर एक प्लैनेट के अगल बगल में अलग अलग ग्रेविटेशनल फोर्स है, अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्ट करता है। सभी कोई जानते हो उम्मीद करता हूँ। सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किसके पास है? एनी गेस, एनी आइडिया? रिकॉल योर चाइल्डहुड डेज, स्कूल में क्या पढ़े हो? तो बुधेर काছে থাকবে মানে Which planet is having maximum gravitational force? মানে স্যার ফার্স্ট যে গ্রহটা আছে ওইটা ইংলিশে কি বলে? Mars. না স্যার, মানে I want to say that the first planet near the sun. No, that is not the reason. Near the sun होने के चलते ही उसका ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा हुआ तो रीजन है। जुपिटर। यस, जुपिटर। जुपिटर का प्लैनेट का सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्यों? क्योंकि वो साइज में सबसे बड़ा है। तो जो भी नेचुरल प्रेजेंस है, जो भी प्लैनेट का जितना साइज में वो बड़ा होगा ना फिजिकली, उसका फोर्स उतना अधिक होगा। तो हम लोगों के अभी तक जो 9 प्लैनेट्स है उसमें सबसे ज़्यादा प्लैनेट बड़ा कौन सा है? जुपिटर बड़ा है। तो जुपिटर का सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है। और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किसमें है? एनी गेस? छोटा का समय याद करो, स्कूल में सब पढ़ाया गया है, सब चीज पढ़ाया गया है स्कूल में। ये सब फिजिक्स में पढ़ाई हुआ है। यस, सैटर्न। याद आ रहा है फिजिक्स के बाद सब? किसका फोन ऑन है? म्यूट करो अपने फोन को, प्लीज म्यूट योर फोन। सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारा जुपिटर में, और सबसे बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो एग्जिस्ट करता है जो प्लैनेट, वो है सैटर्न। सैटर्न की तरफ इतना देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से हमको एक क्या बोले, रिंग टाइप का रिप्रेजेंट होता है जो दिखता है। हम लोग उसको अगर इससे क्या होता है, टेलीस्कोप से अगर हम देखें प्लैनेट को, जैसे हम लोग को इमेज दिखता है, तो देखोगे एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बनाया जाता है। सिर्फ सैटर्न के अगल बगल ही बनता है, और किसी प्लैनेट के अगल बगल बनता है क्या? नहीं बनता है। तो सैटर्न के अगल बगल जो रिंग रिप्रेजेंट कर रहा है ना, वो रिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के चलते बनता है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उस प्लैनेट में, इसके चलते सैटर्न में एक रिंग हमको दिखता है। वो इतना अधिक फोर्स है हमारा जो
पार्टिकल्स को अपने ऊपर अट्रैक्ट करके रोटेट करवा रहा है फोर्स के साथ, वेव क्रिएट किए हुए, जिससे तो हमको फिजिकली दिख भी जाता है। सोच सकते हो कितना अधिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वहाँ पे। ठीक है, तो ये तो हम लोग स्पेस का बात हो गया। जस्ट वेट फॉर व्हाइल। ओके, नाउ मूविंग ऑन, तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट में। एनर्जी जो हमारा दो तरह का एनर्जी ब्रेक करता है, वन बिकम्स पार्टिकल्स। एम आई ऑडिबल टू ऑल? Yes, sir. हाँ सर। ओके, तो एनर्जी हमारा टू फॉर्म्स में ब्रेक करता है। इट ब्रेक्स इन टू फॉर्म्स, वन बिकम्स पार्टिकल्स एंड अनदर बिकम्स एनर्जी फील्ड्स लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फील्ड्स विच आर ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैनॉट बी स्टडीड, और उसको पकड़ा नहीं जा सकता। पार्टिकल्स को हम पकड़ सकते हैं, जिस उसको हम हैंडल कर सकते हैं, उसी चीज़ को हम लोग चेंज कर सकते हैं। जिस चीज़ को हम पकड़ नहीं सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, और भी डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी फील्ड्स है, अल्ट्रासोनिक है, इंफ्रारेड फील्ड्स है, तो सब एनर्जी का फील्ड है। उस सब को हम लोग पकड़ नहीं सकते, इसलिए उस पर स्टडी नहीं होता। उसको बस हम लोग जानते हैं ये एनर्जी फॉर्म्स है। इंफ्रारेड को क्या हम लोग चेंज कर पाते हैं? अल्ट्रासोनिक रेडिएशन, अल्ट्रा रेज, यूवी रेज जो भी आता है उसको हम लोग चेंज कर पा रहे हैं क्या? वो तो अपना एनर्जी एग्जिस्ट करता है, जैसा है वैसा एज इट इज, है कि नहीं? हम लोग उससे कैसे उससे अपने को प्रिवेंट करना है वो चीज़ सोचते हैं ना। हम लोग उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ना उसका इफेक्ट को कम कर सकते हैं। उसको प्रिवेंट करने का, उससे बचने का उपाय सोचते हैं हम लोग हमेशा। ठीक है, तो हम लोग का एनर्जी जो है दो पार्ट में ब्रेक करता है। एक होता है फील्ड, एनर्जी फील्ड, और एक है पार्टिकल्स। उसी पार्टिकल्स का फॉर्म है एटॉमिक और नॉन एटॉमिक। ठीक है, तो जो उसमें भी पार्टिकल्स में जो एटॉमिक फॉर्म है उस पर हम लोग स्टडी करते हैं। नॉन एटॉमिक फॉर्म यहाँ पे फिर से जो है, जिसका नॉन एटॉमिक फॉर्म पार्टिकल्स होता है, उसको हम लोग स्टडी नहीं कर सकते। नॉन एटॉमिक फॉर्म्स क्या है? जैसे डस्ट पार्टिकल्स नॉन एटॉमिक है, तो डस्ट पार्टिकल्स पे स्टडी होता है क्या? नहीं होता है, क्योंकि उसमें एटम्स प्रेजेंट बहुत कम होता है। उसको हम लोग इजीली स्टडी नहीं कर सकते, उसमें वेरिएशंस होता रहता है कंटिन्यूअस। जिसमें एटॉमिक फॉर्म होगा मतलब क्या? वो स्टेबल होगा। स्टेबल होगा तभी तो हम उसको पढ़ सकते हैं ना। यानी जिसमें एटॉमिक फॉर्म्स प्रेजेंट है पार्टिकल्स में, उस पर हम लोग फर्दर स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे देखो डाइवर्सेंस होता जा रहा है। अब एटॉमिक में हम लोग का किस किस तरह से टूटता है, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स? वन इज बैंड स्ट्रक्चर एंड अदर इज स्टेट और विस्कोसिटी फैक्टर। बैंड फैक्टर के अंदर में हमारा क्या क्या आता है? मेटल, सेमी मेटल, सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर्स इसके अंदर आता है। और स्टेट है विस्कोसिटी फैक्टर के अंदर क्या क्या आता है? सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, वो उसके अंदर में आता है। ठीक है, अब हम लोग स्ट्रक्चर में अगर बात करें, स्ट्रक्चर के अंदर में क्या क्या आता है? एमॉर्फस, क्वाजी क्रिस्टलाइन, रैशनल अप्रॉक्सीमेट्स और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। लिक्विड के अंदर अगर हम लोग बात करें तो लिक्विड दो तरह का होता है, लिक्विड क्रिस्टल्स, ठीक है, और सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये आर बेसिकली वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स। डिटेल क्लासिफिकेशन है, ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे हम लोग बाद में अच्छे से। मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है एटॉमिक का क्या क्या है। बैंड स्ट्रक्चर, बैंड स्ट्रक्चर फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है? मेटल, सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, स्टेट या विस्कोसिटी, वो हमारा कैसे क्लासिफिकेशन है? गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस में है। लिक्विड हमारा लिक्विड क्रिस्टलाइन में है, और हमारा स्टेट सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट में भी कन्वर्ट किया जाता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, सॉलिड जो होता है वो स्ट्रक्चर में क्लासीफाई किया जाता है। और डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड स्ट्रक्चर्स क्या क्या होता है? बेसिक चार होता है, जो भी मैंने बताया, एमॉर्फस, क्वाजी क्रिस्टल्स, रैशनल अप्रॉक्सीमेट्स और क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। तो ये बेसिक फोर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है जो कि सॉलिड क्रिस्टल एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट, साइज, इफ यू टॉकिंग अबाउट साइज, व्हाट आर द डिफरेंट साइजेस? साइज दो तरह का होता है, जो मैंने अभी बताया। सबसे छोटा होता है नैनो क्रिस्टल, और नैनो क्वाजी क्रिस्टल सबसे छोटा साइज होता है। ठीक है, so this is the detailed study which we have gone through on our graphical representation.
उसको यहाँ पे थ्योरेटिकल बताया गया है, मैंने अभी जस्ट आप लोगों को ग्राफिकल बताया अपने से एक्सप्लेन करके, यहाँ पे उसको बस थ्योरेटिकल लिखा गया है वही चीज़ को, बट वी हैव स्टडीड इन आवर प्रीवियस स्लाइड, दैट इज बीइंग जस्ट एक्सप्लेन्ड ऑन आवर थ्योरेटिकल मोड इन दिस स्लाइड। ठीक है, तो सभी को दिख रहा है, तो सभी को स्क्रीनशॉट ले सकते हो फॉर फर्दर रेफरेंस। इट विल एक्ट एज योर नोट्स, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, एग्जाम में आएगा तो उसको लिख सकोगे, याद रहेगा तुमको। ऑल ऑफ यू हैव टेकन? यस सर। yes sir. Yes, sir. ओके, इसमें अभी तक ऐसा कोई टॉपिक जो समझ में ना आया हो, जहाँ कुछ कंफ्यूजन लगा हो अभी तक? किसी को कुछ भी? नहीं ना? Till now we were discussing the classification of detailed classification of our basic material structure। एक मटेरियल का स्ट्रक्चर का बेसिक क्लासिफिकेशन क्या होता है, कहाँ कहाँ से टूटते हुए कैसे कैसे क्लासिफाई होता हुआ जाता है, उसी का क्लासिफिकेशन हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा अभी तक। ठीक है, आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। So these are the different questions we Yes. should clarify। तो ये हम लोग अभी नहीं देखेंगे, हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है ना, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। Now let us start। What are the common type of engineering material? इंजीनियरिंग मटेरियल बेसिकली कॉमन किस तरह का होता है? ठीक है, तो इस स्लाइड का पहले सभी कोई, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ सभी को इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। दिस विल एक्ट एज योर नोट्स। दिस इज द वेरी फर्स्ट स्लाइड ऑफ योर टॉपिक। सभी को ने ले लिया? Yes sir. Done sir. Yes, sir. Done? Okay, so let us go through detail। See, what are the सर एरो basic? वाला पोर्शन नजर नहीं आ रहा है। कौन वाला? डाउन साइड में जो एरो वाला पोर्शन है वहां पर स्टॉप शेयरिंग है, उसके वजह से नीचे वाला जो राइटिंग लिखा है वो नजर नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, मैं उसको बाद में मैं बता दूंगा। ठीक है, सर हाइड का ऑप्शन भी दिया हुआ है बगल में, उसको हाइड कर दीजिएगा। ओके ओके, मैं कर्सर ही तो बना रहा है। ठीक है, यस सर। नाउ इज इट ओके? सभी ने ले लिया ना स्क्रीनशॉट? चलो हम लोग अब एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। नाउ बेसिक कॉमन टाइप ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल आर, क्या क्या इस स्लाइड में हमें दिख रहा है? मेटल्स, सिरेमिक, पॉलीमर्स। ठीक है, एंड देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कंपोजिट मटेरियल्स। ये सारा इंजीनियरिंग मटेरियल में आता है। ठीक है ना, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कंपोजिट क्या है। कंपोजिट से क्यों स्टार्ट किए? कोई जानता है व्हाट इज ए कंपोजिट? एनी गेसेस? कोई नहीं जानते हो? सर कंपोजिट मींस Sir, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलॉयज। आभार आभार बोलो, आभार बोलो। सर कंपोजिट मींस मिक्सचर ऑफ डिफरेंट एलॉयज। No, not exactly alloys. It is a combination of different materials, not ओह alloys। सॉरी नॉट एलॉयज, सॉरी। It is already described in your slide। उसे पढ़कर नहीं समझना है, आप लोग पहले से जानते हो कि नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ। तो मैं स्लाइड में दिख ही रहा है, मैं तो आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। आई विल एक्सप्लेन दैट। बताइए सर। देखो, पहले सबसे पहले कंपोजिट का सबसे अच्छा एग्जांपल है, इफ आई टॉकिंग अबाउट ए वेरी वेरी गुड एग्जांपल ऑफ अ कंपोजिट इज ए कंक्रीट स्ट्रक्चर। इट इज ए कंपोजिट मटेरियल। कंक्रीट का एग्जांपल क्या है? हम
सर आवाज चला गया सर। सर आवाज नहीं आ रही है सर। हेलो सर आवाज नहीं आ रहा सर। निरंजन। हाँ सर शायद से लेफ्ट हो गए हैं। हाँ हाँ हाँ। गलती से हो गया होगा लग रहा। হ্যালো নীলাঞ্জন, হ্যালো, হুম। বলছি রানার কি ব্যাপার, ঠিক হলো? জানি না রে, কথা তো হয়নি ওর সাথে। ও ঠিক। अच्छा सभी कोई मकआउट के साइड में जाके वो फॉर्म फिल अप कर लेना। हाँ, रेगुलर फॉर्म एनरोलमेंट हो रहा है अभी। মার্কআউটে কোন সেকশনে থাকবে? रेगुलर फॉर्म एनरोलमेंट পেয়ে যাবি, দাঁড়া আমি হ্যাঁ, মেসেজ করে দেবো। আচ্ছা। कौन सा नीलांजन? वो जो एमी हॉल वाले ग्रुप में आया वो? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस यस सर। यस सर। सर। अरे वेरी सॉरी, हमारा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, इसी चलते मैं आउट ऑफ ऑफलाइन हो गया था। हाँ सर लगा ही था कोई। हाँ, कोई कंफ्यूजन है क्या? स्लाइड दिख रहा है? इज इट विजिबल? ना सर। नो सर। स्लाइड इज नॉट विजिबल। जस्ट वेट। अभी दिख रहा है? नाउ इज इट विजिबल? नो सर, अभी तक अभी भी नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है? क्या हुआ? नहीं सर। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा लग रहा है। हाँ सर नेटवर्क का प्रॉब्लम लग रहा है। স্যার আপনি স্ক্রিন শেয়ার করেছেন সেটা বোঝা যাচ্ছে, বাট আপনার স্ক্রিনটা শো হচ্ছে না। हाँ এই सर। তো। এখন হয়েছে? नो सर अभी हाँ, भी नहीं। is happening. Just let me check. স্যার আসেনি স্যার, টাইম ল্যাগ চলছে স্যার। আরেকবার স্ক্রিন শেয়ারটা অফ করে অন করুন। हाँ, मैं ऑफ कर दिए, सारे बात कर चुका हूँ। Now is it visible? Is it visible? ওপেন হয়নি স্যার, স্ক্রিনটা আসেনি, মানে স্ক্রিনটা জাস্ট বড় হয়েছে তারপরে থেকে গেছে আর কি। Just wait. प्रॉब्लम है ना माঝে মাঝে।
Now is it visible? हाँ Yes. Yes. Yes, sir. Okay. Yes. See, we were discussing about what are the basic types of engineering material. Under that, we have discussed that where there are basically 4 types of engineering material, that are namely metal, ceramic, polymers, and various types of composite material. Now we were starting the discussion with composite material, where we have given an example of concrete structure. Now I was asking from you that do you know any example for concrete? concrete से क्या समझते हो आप लोग? concrete से कोई आइडिया है किसी को? concrete, have you heard the word concrete before? Have you heard the word concrete before? Anyone? concrete word सुने हो? Yes, sir. শুনেছি তো অনেকটা। দেখো আমাদের যতগুলো বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন আছে সব কনক্রিট স্ট্রাকচার আছে। Yes, sir. ইট, বালি, সিমেন্ট আর যদি স্টিল দিয়ে কোনো জিনিস কনস্ট্রাক্ট করা হয় তাকে আমরা কনক্রিট স্ট্রাকচার বলি। ঠিক আছে? বিল্ডিং এ যেগুলো আমাদের পিলার্স আছে, যেগুলো আমাদের রুফস আছে, সেগুলো বেসিক্যালি এক কনক্রিট স্ট্রাকচার আছে। কেন? কেন কি এখানে কম্বিনেশন অফ ডিফারেন্ট ম্যাটেরিয়াল হচ্ছে। one is stone chips, another is sand, another is water, another is cement, and the last one is metal rods, TMT bars. इन सभी को मिलाकर एक स्ट्रक्चर, जो नया स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग कॉन्क्रीट कहते हैं। एंड दैट कॉन्क्रीट इज एन प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ ए कंपोजिट मटेरियल। आई बात समझ में? डू यू अंडरस्टैंड दैट? Yes, sir. तो उसी को हम लोग कंपोजिट बोलते हैं। इसीलिए देखो क्या बोला, कंपोजिट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर मटेरियल which gives a certain benefit to at least one property. A comprehensive classification is given in next slide, जो हम बाद में बात करेंगे। हम लोग देखो इसमें जो बनाते हैं, हम लोग देखो जो डेंसिटी होता है पिलर्स का या फिर रूफ का, उसके ऊपर डिपेंड करता है हम कितना मेटल उसके अंदर देंगे। ठीक है ना? जैसे हम लोग मेटल बढ़ाते हैं तो हम लोग कंपोजिशन पिलर्स का या फिर रूफ का कंपोजिशन बढ़ाते हैं। कंपोजिशन अगर हमको कम रखना, डेप्थ कम रखना है, ब्रेथ कम रखना है, तो हम लोग मेटल का कंपोजिशन को कम कर देते हैं। तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन हो रहा है फोर्सेस का, उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है? सीमेंट इज नोन एज ए वेरी बेस्ट कॉम्प्रिहेंसिव फोर्स एंड मेटल्स आर नोन एज वेरी बेस्ट एक्सपेंसिव फोर्स। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है दोनों फोर्सेस का, इसीलिए मेटल और सीमेंट को जब हम लोग एक साथ मिलाएंगे तो एक कंप्रेसिव फोर्स लगाएगा अपने नेचर की वजह से, और एक एक्सपेंसिव फोर्स लगाएगा। दोनों ऐसा अमाउंट में मिक्स किया जाता है ताकि दोनों बैलेंस करके रखे। तो दोनों ऐसा प्रॉपर्टी, ऐसा मटेरियल होता है जो कि किसी भी इन्वायरमेंट में, किसी भी एटमॉस्फेयर कंडीशन में लास्ट कर सकता है फॉर लॉन्ग एंड लॉन्ग टाइम। इसी जितना भी ब्रिजेस, घर वगैरह बनता है वो कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर का बनता है ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, ताकि ज़्यादा लंबे समय तक टिक सके। अगर हम लोग सिर्फ सीमेंट का बना दें, सर्टेन टाइम के बाद वो कोलैप्स कर जाएगा। हम लोग सर्टेन सिर्फ मेटल का बना दें, सर्टेन टाइम के बाद रस्ट पकड़ के कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन अगर हम लोग दोनों को मिक्स करके बना दें तो दोनों से कंपेरेबल काफ़ी ज़्यादा दिनों तक लास्ट करेगा, है कि नहीं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज द रीजन Yes, sir. why we are using a composite material in very much of what to say manufacturing process of different type of buildings, rods, different structures। हम लोग वहाँ पे composite material यूज करते हैं। तो पढ़ाने का मोटिव ये था कंपोजिट पहले, यहाँ पे इसलिए पहले पढ़ाया जा रहा है क्योंकि इसमें हम लोग देखो यूज कर रहे हैं क्या क्या मेटल्स को यूज कर रहे हैं, सीमेंट को यूज कर रहे हैं। सीमेंट इज बेसिकली ए सिरेमिक मटेरियल। सीमेंट को सिरेमिक मटेरियल बोला जाता है क्योंकि उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट को मिलाकर हम लोग जो नया प्रॉपर्टी बना रहे हैं वो पेरेंट प्रॉपर्टी से ज़्यादा इनहेंस, ज़्यादा अच्छा अपग्रेडेड वर्जन है, इसलिए वो सिरेमिक बोलते हैं। सीमेंट क्या नेचुरली पाया जाता है क्या? सीमेंट बनाया जाता है, हाँ सभी कोई जानते हो ना? हाँ सर। व्हाट इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए सीमेंट? सीमेंट का सबसे ज्यादा मेजोरिटी कंस्टिट्यूएंट क्या होता है? लाइमस्टोन, सुने हो? हाँ सर। Okay. तो लाइमस्टोन उसका मेजर कंपोजिशन है। लाइमस्टोन के साथ डिफरेंट केमिकल्स को उसको मिलाया जाता है।
तो यहाँ पे देखो मेन बेसिक क्या है, लाइमस्टोन है, डिफरेंट केमिकल्स है जिसको कि हम लोग मिक्स करके सीमेंट बना रहे हैं। सीमेंट बेसिकली इज एन एग्जांपल ऑफ ए सिरेमिक मटेरियल। जैसे मैंने अभी कंक्रीट बताया कंपोजिट मटेरियल का प्रैक्टिकल एग्जांपल, उस तरह से सिरेमिक है का प्रैक्टिकल एग्जांपल है सीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट मटेरियल्स है जिसको कि हम लोग यूज कर रहे हैं कंपोजिट में। ठीक है, इसमें सोचने वाली बात है, कंपोजिट में चलो मेटल यूज कर रहे हैं, वो मेटल नेचुरली नहीं मिलता हम लोग को, आयरन ओर के फॉर्म में मिलता है, हम लोग उसको फर्नेस में प्रोसेस करके बनाते हैं। तो यहाँ पे मेटल बना, मेटल को हम लोग यूज़ किए। यहाँ पर सिरेमिक जो होता है इसमें डिफरेंट कंपोजिट्स को यूज़ करके हम लोग बनाते हैं। जो नया मटेरियल बनता है उसको सिरेमिक मटेरियल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सीमेंट, यहाँ पे हम लोग सीमेंट को यूज़ कर रहे हैं। अब उस मान लो बेसिक कंपोनेंट से एक चीज़ बना, अब जो नया चीज़ बना उस तरह का नया 4 तरह का 5 तरह की चीज़ों को यूज़ करके हम फर्दर नया चीज़ बना रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एडवांस चीज़ क्या चीज़ हुआ, कंपोजिट सबसे एडवांस चीज़ हुआ, क्योंकि कंपोजिट मटेरियल का यूज़ कर रहा है, मेटल भी यूज़ कर रहा है, सिरेमिक भी यूज़ कर रहा है।